Hello students, in this video lecture I will show you how to prepare a flexible budget showing separately unit cost and total cost at different levels of production. Now here I have one problem for that, but before reading this problem let me remind you the most important features of variable cost and fixed cost. The first is variable cost per unit always remains constant, fixed, rigid, irrespective of changes made in the level of output. जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या कम हो. There and the same time total variable cost changes with the changes made in output. It increases when output increases and vice versa. एंड जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो हमेशा चेंज होती है प्रोडक्शन के साथ. अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो वो भी बढ़ती है, अगर प्रोडक्शन कम हुआ वो भी कम होती है. टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स्ड, रिजिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस मेड इन द लेवल ऑफ आउटपुट. जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है मतलब फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ना हो या फिर बढ़े या फिर कम हो. Next है fixed cost per unit changes with the changes made in output. It decreases when output increases and vice versa. जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है वो हमेशा चेंज होती है, वो कम होती है जब आउट प्रोडक्शन बढ़ता है एंड वाइस वर्सा. मतलब वो बढ़ती है अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो. आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. In this problem, in Verma Plastics Company Badlapur, the cost of an article at a capacity of 5,000 units is given under A. ये जो A का column है, in this column we can see the budgeted figures of these expenses at a level of 5,000 units, and in column B we can see their degree of variness. मतलब the first four are 100% variable and remaining five are semi-variable. In this and we are also told to prepare a flexible budget at a level of 4,000 units and 6,000 units. Okay, now in this problem all these expenses are classified into categories. The first four are variable expenses and the next five are semi-variable expenses. Now this is the format of the flexible budget. Now you can see here in the books of Burma Plastics Company Badlapur, flexible budget, normal activity is 5,000 units. In this problem, the cost data is available at a level of 5,000 units, but the capacity is missing. Now, in this row, you can see I have mentioned the production units, the production levels. The 5,000 levels data is already mentioned in the problem, and we are told to prepare a flexible budget at a level of 4,000 units and 6,000 units. So, this is the level of 4,000 units, this is the level of 6,000 units. Their capacities are missing in the problem. Now you can see in the column the under 4,000 units, that is at a level of 4,000 units, you can see there are two separate columns, unit cost rupees and total cost rupees. And same setting we can see in under a level of 5,000 units and 6,000 units. Now what is to be shown here under unit cost and what is to be shown here under a total cost. यहाँ पे हमें क्या दिखाना है टोटल कॉस्ट के अंदर. टोटल कॉस्ट के अंदर हमें दिखाना है कि 4,000 यूनिट्स पे बजटेड फिगर क्या आ रहा है. एक्सपेंसेस के 4,000 फिगर पे टोटल बजटेड फिगर कितनी आ रही है वो हमें यहाँ पे दिखानी है, यहाँ पे दिखानी है. और जो यूनिट कॉस्ट है वो यहाँ पे दिखानी है. सेम केस सेम we have to consider in case of 5,000 units and 6,000 units. मतलब अगर यहाँ पे यूनिट कॉस्ट दिखा दे रही है मतलब क्या है कि 5,000 लेवल पे यूनिट कॉस्ट कितना है वो यहाँ पे दिखाएगा और 5,000 लेवल पे टोटल कॉस्ट कितना है वो यहाँ पे दिखेगा. 6,000 लेवल पे यूनिट कॉस्ट कितना है वो यहाँ पे दिखेगा और 6,000 लेवल पे टोटल कॉस्ट कितना होगा वो यहाँ पे दिखाएगा. नाउ द फर्स्ट फोर आर वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड वी हैव अ डेटा एट अ लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स. तो मैं क्या कर लूँगा, इस डेटा को सबसे पहले दिखा दूंगा 5,000 लेवल के नीचे यहाँ पे टोटल कॉस्ट के अंदर, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट है. मतलब 5,000 यूनिट अगर बनाने तो बजटेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 25,000 रुपीज. बजटेड फिगर ऑफ रॉ मटेरियल है 25,000 रुपीज. अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिट कॉस्ट कितनी होगी. अगर 5,000 क्वांटिटी अगर बनानी है then the budgeted figure of raw material is 25,000 rupees. Then how much will it be for a one unit?
एक यूनिट पे कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। जब भी आपको यूनिट कॉस्ट निकालना है तभी तभी आपको क्या करना है, उस लेवल की टोटल कॉस्ट। अब उस लेवल की मतलब 5000, आप राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेवल ऑफ 5000। अब 5000 की रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है, 25,000 रुपीज है। तो उस लेवल की टोटल कॉस्ट को आपको डिवाइड करना है उसी लेवल के नंबर ऑफ यूनिट से। अब इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5000। तो 5000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, फिर हमें मिलेगी यूनिट कॉस्ट, दैट इज ₹5। अभी समझ लो ₹5 का मतलब क्या है। अगर 5000 यूनिट बनाने हैं तो बजटेड फिगर ऑफ रॉ मटेरियल होगी 25,000 एंड बजटेड फिगर ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट होगी ₹5। बजटेड फिगर ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट होगी ₹5। एक यूनिट पे ₹5 का रॉ मटेरियल लगेगा। नाउ वी ऑल नो दैट द वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी वो ₹5 होगी और यहाँ पे भी वो ₹5 होगी। अब मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 15,000 की हमें यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो 15,000 रुपीज ये बजटेड फिगर है, किसकी है, डायरेक्ट लेबर, बजटेड डायरेक्ट लेबर की बजटेड फिगर है 15,000 रुपीज एट अ लेवल ऑफ 5,000 यूनिट। तो इसकी यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। जो भी आपकी बजटेड कॉस्ट है उसे आपको डिवाइड करना है बाय अ नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने इस लेवल पे, 5000 है, तो कितनी आ जाएगी बजटेड फिगर, ₹3। अभी यहाँ पे देखो इसका 15,000 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे 15,000 मीन्स दैट the total cost of direct labor at a level of 5,000 unit. 15,000 rupees is the total cost of direct labors at a level of 5,000 units. And at the same time, the budgeted cost of direct labor at a one unit at a level of 5,000 units, I mean to say budgeted cost of direct labor per unit at a cost of 5,000 units is ₹3। मतलब एक यूनिट पे ₹3 का खर्चा आ रहा है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, यहाँ पे भी वो तीन ही आएगी। नाउ इन द सेम वे I can calculate here the unit cost of store overheads। हाँ, कैसे निकालनी है, कॉस्ट को डिवाइड करो खाली नंबर ऑफ यूनिट से, आपको मिल जाएगी, दैट इज 0.20। इन द सेम वे आई कैन कैलकुलेट हियर अ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कॉस्ट पर यूनिट। क्या करना है, खाली टोटल कॉस्ट को डिवाइड करो उस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट से। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है 5000 यूनिट्स, तो आ गई कितनी, ₹2। मतलब प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस पर यूनिट है ₹2। अब जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं। अब क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे एट अ लेवल ऑफ 4000 एंड एट अ लेवल ऑफ 6000। मैंने आपको पिछले भी प्रॉब्लम में सिखाया था कि आपको क्रॉस कैलकुलेशन करना है। क्रॉस कैलकुलेशन करना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे देखो, अगर 5000 यूनिट पे अगर रॉ मटेरियल पे 25,000 की फिगर है, बजटेड फिगर है रॉ मटेरियल की, तो 6000 लेवल पे कितनी की होगी, 6000 लेवल की पे वो फिगर कितने की होगी, तो उससे हमें क्रॉस कैलकुलेशन करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 6000 इंटू 25,000 डिवाइड बाय 5000, तो कितने, 30,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का कितना फिगर होगा, 30,000 होगा। लेकिन हमारे पास और एक लॉजिक है और वही लॉजिक को हमें यूज़ करना है, ना कि इस क्रॉस कैलकुलेशन के लॉजिक को यूज़ करना है आगे जाके। तो कैसे करेंगे, हाँ, क्रॉस कैलकुलेशन को भी करना है। जब नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उस टाइम पे हमें क्रॉस कैलकुलेशन का ही लॉजिक यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे अपन दूसरा लॉजिक यूज़ करने वाले। तो क्या करने वाले, देखो, 1 यूनिट पे कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल का यूनिट कॉस्ट कितना है, 1 यूनिट पे ₹5। तो 4000 यूनिट पे कितना होगा, खाली क्या करना है, टोटल कॉस्ट को अगर निकालना है ना, तो एक ही काम करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द लेवल, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 4000 है, उसको मल्टीप्लाई करो बाय द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे रॉ मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट कितना है, ₹5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, कितना आ गया, 20,000 रुपीज़ आ गया। अगर यहाँ पे दिखा देता हूँ 4000 यूनिट्स, तो भी क्रॉस कैलकुलेशन में तो भी 20,000 ही आंसर आएगा, देखो 20,000 आंसर आएगा। लेकिन क्रॉस कैलकुलेशन को यूज़ नहीं करना है हमें, हम यही लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ₹3। तो फिर 4000 यूनिट्स के लिए कितनी डायरेक्ट लेबर की एक्सपेंसेस हो गए, बजटेड एक्सपेंसेस हो गए, तो क्या करना होगा, खाली मल्टीप्लाई करना होगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होगा बाय द यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, कितनी है, 3 है।
करने के बाद आंसर क्या आ गया? 12,000 आ गया। तो यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? अभी यहाँ पे आपको ये भी लॉजिक मालूम है, जैसे ही अगर आपका डिफरेंस इन द लेवल अगर सेम है, डिफरेंस इन द लेवल अगर सेम है तो डिफरेंस इन द वैल्यू भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 18,000 रुपीज, कि अगर डिफरेंस इन द लेवल सेम है तो डिफरेंस इन द वैल्यू भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे 3,000 से बैलेंस बढ़ेगा, बजटेड फिगर बढ़ेगी, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18,000 रुपीज। या तो फिर एक काम कर लो, जैसे आपको मैंने बताया ऑलरेडी, अगर यूनिट कॉस्ट 3 रुपए है और एक यूनिट पे 3 रुपए का डायरेक्ट लेबर का खर्चा है, बजटेड खर्चा है, तो 6,000 यूनिट पे बजटेड खर्चा कितना होगा? तो 6,000 इंटू थ्री, answer is 18,000 rupees. Now the next is here, point 20 is the unit cost of product stores overhead per unit at a level of 4,000 units. Then how much will it be in a total? टोटल में 4,000 यूनिट्स में पे कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट्स को खाली मल्टीप्लाई करो बाय द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे स्टोर ओवरहेड की पर यूनिट वैल्यू कितनी है? 0.20, तो आंसर आ गया 800 रुपीज। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6,000 विथ 0.20, तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपीज। 1200 रुपीज आंसर आ जाएगा, मतलब बजटेड फिगर आएगी 1200 रुपीज। लेट्स कैलकुलेट हियर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस एट ए लेवल ऑफ 4,000 यूनिट्स। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, मल्टीप्लाई करो खाली नंबर ऑफ यूनिट्स को बाय द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आई मीन टू से द प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस पर यूनिट, वो कितने हैं? 2 है, तो 4,000 इंटू टू, आंसर इज 8,000 रुपीज। और यहाँ पे कितने हो गए? अगर आप 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रुपीज। चलो अभी नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, क्वाइट इम्पोर्टेंट, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ पे ध्यान से करना है। अभी सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम में दिया है हमें? रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है यहाँ पे, उसका वैल्यू 2,000 रुपीज है। तो सबसे पहले मैं 2,000 रुपीज इनर में दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा, तो 2,000 रुपीज। और यहाँ पे देखो 2,000 का 75% वेरिएबल है, मतलब 1,500 वेरिएबल है, और इसका मतलब जो बाकी का 25% है वो होगा 500 रुपीज। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो डेटा हमें मिला अवेलेबल किया गया है प्रॉब्लम के अंदर, वो है 5,000 लेवल का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इन टोटल कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स, फर्स्ट 1,500, और यहाँ पे दिखाऊंगा 500 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या आपको मालूम ही है ऑलरेडी कि जो फिक्स कॉस्ट होती है इन टोटलिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने भी 500 दिखा दिया 4,000 लेवल के नीचे इन द कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे 6,000 लेवल के नीचे इन द कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट मैंने 500 दिखा दिया, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। नाउ लेट्स कैलकुलेट हियर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो रिपेयर मेंटेनेंस का जो वेरिएबल पार्ट है उसका पर यूनिट कितना कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, खाली कॉस्ट को आपको डिवाइड करना होगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 5,000 है, और कॉस्ट कितनी है? 1,500 है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 0.30। और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो वेरिएबल पार्ट है उसका पर यूनिट कॉस्ट है 0.30, और ये वेरिएबल है इन नेचर, और ये हमेशा क्या होने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या कम हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टोटल कॉस्ट को कैसे निकाले एट अ लेवल ऑफ 4,000 यूनिट। सिंपल है, अगर एक यूनिट पे 0.30 का बजटेड फिगर है तो 4,000 यूनिट्स पे कितनी होगी? तो खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को खाली मल्टीप्लाई करो बाय द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि 0.30 है, तो आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट होगी रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर की, जो वेरिएबल है वो एट ए लेवल ऑफ 4,000 यूनिट्स होगी 1,200। इन अ सेम वे यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, खाली मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स को बाय द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो कितनी है? 0.30। तो आंसर आ गया यहाँ पे 1,800। नाउ लेट्स कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट अ लेवल ऑफ 4,000 यूनिट्स। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट को, कितनी टोटल कॉस्ट है? 500 है, को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स से। इस लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 4,000, तो 4,000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 0.30 पर यूनिट। मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट ए लेवल ऑफ 4,000 यूनिट्स कितनी है? 0.30 है। अब इस लेवल पे निकालेंगे, 5,000 के लेवल पे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, टोटल कॉस्ट जो भी है आपकी 500 यूनिट्स, उसे खाली डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द लेवल।
इस लेवल की नंबर ऑफ यूनिट्स 5000 है, तो कितनी आ गई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट अ लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स? 0.10। अब यहाँ पे भी निकालेंगे, सेम लॉजिक है, खाली क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट को हमें डिवाइड करना होगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे कितनी है? 0.08। लेट्स कैलकुलेट नाउ द बजटेड फिगर ऑफ पावर एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स एंड 6000 यूनिट्स। पावर की फिगर कितनी है? 1250। तो 1250 को यहाँ पे लेंगे अपन सबसे पहले 250। अब इसके 80% को निकालना है और 20% को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1250 इंटू 80%। तो 80% कितना है? 1000। तो 1000 को निकालेंगे तो यहाँ पे 1000 में लिख दूंगा 1000, और जो बाकी का बचा है 250 वो फिक्स्ड है। इसका मतलब 250 क्या है? फिक्स्ड है। देखो, पावर का 80% वेरिएबल है, मतलब 1000 वेरिएबल है, और बाकी का बचा 250 फिक्स्ड है, मतलब 20% फिक्स्ड है। और ये जो डेटा है वो डेटा हमारा इस लेवल का है, 5000 लेवल का है। तो सबसे पहले मैं वो डेटा 1000 रुपीज़ और 250 यहाँ पे दिखा दूंगा। अब हमको तो मालूम है कि फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, या फिर बढ़े या कम हो। जो फिक्स कॉस्ट इन टोटल होती है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। चलो अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे एट अ लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स। तो 5000 यूनिट्स की यूनिट के लेवल पे यूनिट वेरिएबल यूनिट कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल यूनिट कॉस्ट कितना होगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है 1000 उसे पहले डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो 5000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 0.20। अब इसका तो फिगर हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी बदलती ही नहीं, तो उसे ले लेंगे यहाँ पे। अब कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स। अगर एक यूनिट पे खर्चा 20 पैसे है तो 4000 यूनिट्स पे कितना होगा? खाली मल्टीप्लिकेशन करना होगा दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? नंबर ऑफ यूनिट्स के बीच में, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स कितनी है? 0.20। तो आंसर कितना आ गया? 800 आ गया। तो उसी 800 को, और यहाँ पे वो कितना होगा? 1200 होगा। करके देख लो आप, अगर आप 6000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.20 से तो आंसर आपका 1200 ही आएगा। अब नेक्स्ट है, चलो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स। सबसे पहले 4000 यूनिट्स के लेवल की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, खाली आपकी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स उसको डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। इस लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट्स 4000 है, तो 4000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.06 आ गया। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। आप निकालेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट अ लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, खाली टोटल कॉस्ट को, जो टोटल कॉस्ट है 250 ऑफ दिस लेवल, उसे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स से। 5000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 0.05, मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज 0.05 एट अ लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स। आप निकालेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट अ लेवल ऑफ 6000 यूनिट्स पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, खाली कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकली है 0.04। चलो अब इंस्पेक्शन का करेंगे। इंस्पेक्शन का कितनी वैल्यू है? 500 वैल्यू। तो यहाँ पे 500 ले लेंगे, सबसे पहले 500 ले लेंगे। अभी 500 का 80% कितना होता है? 500 का 80% होता है 400। 400 ही होता है ना? तो चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, तो इज इक्वल टू 500 इंटू 80% कितनी हो गई? 400 हो गई, बराबर था मेरा। तो यहाँ पे 400 लेंगे, और जो बाकी का 20% है, मतलब 100 रुपया है, वो फिक्स्ड है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डेटा हमें मिला है वो मिला है 5000 लेवल का। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देंगे इस डेटा को, 400 को और 100 को। अब हमें तो मालूम है फिक्स कॉस्ट इन टोटल की प्रॉपर्टी क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या कम हो। अब यहाँ पे चलो तो निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इंस्पेक्शन एट अ लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट को कैसे, पर यूनिट को कैसे निकालेंगे? खाली जो कॉस्ट है इस लेवल की कितनी है? 400 है, उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। इस लेवल पे 5000 यूनिट्स बन रहे हैं, तो कितनी कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 0.08 है। उसी को और उसी को हम ये कांस्टेंट रखेंगे एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स एज वेल एज 6000 यूनिट्स, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट ही रहती है।
नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, क्या करना होगा, इस लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 4000, उसे खाली मल्टीप्लाई करो बाय द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो कितनी है? 0.08, तो कितने आ गए यहाँ पे आंसर? 320 आ गया। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे आप 6000 को 0.08 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वो आएगी 480, करके देखो 480 आएगी। अब उसके बाद चलो कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सबसे पहले 4000 के लेवल के ऊपर करेंगे। तो क्या करेंगे, खाली 100 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे आ गया 0.03। अब यहाँ पे भी करेंगे, इस लेवल पे भी करेंगे, कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट को खाली डिवाइड करो इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स से, इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 5000, तो यहाँ पे आ गई 0.02। अब यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? इस लेवल की जो टोटल कॉस्ट है वो भी 100 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स इस लेवल पे है 6000, तो कितने आ गए? 0.02 आ गए। चलो अब अब नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड्स, इसकी वैल्यू है 5000, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 5000 को दिखा दूंगा। अब हमें 5000 को 25% निकालना है सबसे पहले। चलो इसका 25% निकालेंगे। 5000 का 25% होता है 1250। कितना होता है 1250? तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा 1250, और बाकी का जो बचा 3750 वो फिक्स्ड है। 3750 वो फिक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फिगर है हम टोटल कॉस्ट के अंदर दिखाएंगे in the column of total cost of at a level of 5000 units। तो यहाँ पे सबसे पहले 1250 को दिखाएंगे और उसके बाद 3750 को दिखाएंगे। अब ये तो फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर्टी तो हम लोगों को मालूम है, दैट इज इट इज कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब चलो यहाँ पे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कैसे निकालना है? इसलिए कितनी टोटल कॉस्ट है इस लेवल पे? 1250, तो उसको खाली डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट से, इसलिए लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट है 5000, तो कितने आ गई कॉस्ट? 0.25। तो उसको खाली वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली, तो उसको अपन ले लेंगे। बाकी के लेवल पे भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही रहेगी। नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल cost of variable office overheads at a level of 4000 यूनिट्स। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, खाली क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो बाय द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो कितनी है? 0.25 है, तो इस लेवल पे कितना खर्चा है? 1000 रुपीज़ है। अगर आप इस लेवल पे कैलकुलेट वो करोगे तो वो होगा 1500 रुपीज़। कैसे निकला है? खाली मल्टीप्लिकेशन किया इन बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 6000 यूनिट्स ऑफ दिस लेवल, एंड विथ वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड्स पर यूनिट, वो कितने हैं? 0.25 है। अब उसके बाद लेट्स कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स। तो कैसे निकालना है? सिंपल है, खाली नंबर ऑफ आपकी टोटल कॉस्ट को, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो यहाँ पे 4000 यूनिट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे 0.94 आ गई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, इस लेवल पे फिक्स कॉस्ट भी 3750 है, मतलब 3750 है, उसको डिवाइड करो इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट से, दैट इज 5000, तो आ गई यहाँ की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? इस लेवल की फिक्स कॉस्ट है 3750 और उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट से इस लेवल के, दैट इज 6000, तो आ गए 0.63, मतलब 0.63 इज द फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स पर यूनिट एट अ लेवल ऑफ 6000 यूनिट। मतलब 6000 यूनिट के ऊपर जो फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड है उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 0.63। अब लास्ट वाला खाली एक ही बचा है, सेलिंग ऑन कॉस्ट, उसकी वैल्यू है 3000 रुपीज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3000 रुपीज़ को दिखा देता हूँ। 3000 रुपीज़, उसका 25% वेरिएबल है और 75% क्या है? फिक्स्ड है। चलो सबसे पहले 25% को निकालेंगे, वो होगा 750, और बाकी का 75% है, वो है 2250। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देंगे उसे 750 और यहाँ पे 2000 2250, ठीक है।
अभी ये तो फिक्स्ड है, फिक्स का प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है, दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट अदर लेवल्स आल्सो इन टोटलिटी। अब ये है वेरिएबल पार्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, खाली टोटल कॉस्ट को मतलब वेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट इन टोटलिटी मतलब 750 को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स से ऑफ दिस लेवल, और इस लेवल पे 5000 यूनिट्स बन रहे हैं तो आ गई 0.15, और इस 0.15 का हम लोगों को तो मालूम है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस लेवल के हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल वेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 4000 है, तो उसको खाली मल्टीप्लाई करो विद द वेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट पर यूनिट के साथ, और वेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है इस लेवल पे? 0.15 है, तो 0.15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 600 आ गया। तो इस लेवल पे कितना होगा? 900 करके देख लो आप। अगर आप 6000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.15 के साथ तो आंसर आपका 900 ही आएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, टोटल कॉस्ट को कितनी है? 2250 को डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स से। इस लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट्स 4000 है, तो कितनी आ रही है? 0.56। अब यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? सिंपल है, कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट कितनी है? 2250 को डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स से ऑफ दिस लेवल, दैट इज 5000 यूनिट्स, तो इतनी आ रही है। और यहाँ पे भी करो आप कैलकुलेशन, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है 2250 उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स से, दैट इज 6000, तो ये यहाँ की फिक्स कॉस्ट आ गई। देख लो 0.38 है ना, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, हाँ, एट अ लेवल ऑफ 6000 यूनिट्स। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है एट अ लेवल ऑफ 5000 units. A fixed cost per unit है at a level of 4000 units of selling on cost. चलो अब फाइनली हमें कैलकुलेशन करना है, टोटल मतलब बजटेड फिगर निकालनी है, फाइनल फिगर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? खाली सबसे पहले टोटल कॉस्ट को, आपका टोटल कॉस्ट के अंदर मतलब इस कॉलम के अंदर जो भी फिगर टोटल कॉस्ट उसका एडिशन कर लो, कितने आ गए यहाँ पे? 51,570। ओके, 51,570 मतलब क्या है? जो बजटेड टोटल कॉस्ट है, बजटेड टोटल कॉस्ट है एट अ लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स, वो कितनी है? 51,570। अब यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सिंपल, ये सारे के सारे फिगर जो है टोटल कॉस्ट के अंडर द कॉलम ऑफ 5000 यूनिट्स और एट अ लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स, उसकी एडिशन कर लो। यहाँ पे कितनी आ रही है? 62,750, मतलब एक बजटेड कॉस्ट है, दिस इज बजटेड कॉस्ट 62,750 एट अ लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स। अब 6000 यूनिट्स के लेवल की बजटेड कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो इसकी एडिशन कर लो, इस कॉलम की एडिशन कर लो, आपको मिल जाएगी बजटेड कॉस्ट, दैट इज 73,930 एट अ लेवल ऑफ 6000 यूनिट्स। ये बजटेड कॉस्ट है। अब मैंने यूनिट कॉस्ट की कॉलम की एडिशन नहीं की, अब मैं यहाँ पे एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आंसर तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कितने डिजिट्स लेने तो कोई मैटर करता है, कितने आप डिजिट ले रहे हो मैटर करता है। तो यूजुअली आपको 2 डिजिट्स लेने हैं हमेशा। यूनिट कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम आपको 2 डिजिट्स ही लेने हैं, तो 2 से ज़्यादा मत लो। लेकिन यूनिट कॉस्ट निकालते समय इसकी इन फिगर्स की एडिशन मत करो कभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट निकलेगी आपकी इन योर नोटबुक, दैट कुड बी रॉन्ग, वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि वो गलत क्यों हो सकती है कि हम लोगों ने सारे डिजिट्स कंसिडर नहीं किए, तो फिर रिकंसाइल नहीं होगी। जो यूनिट कॉस्ट होगी ना एट एनी लेवल, उसी लेवल की टोटल कॉस्ट के साथ शायद रिकंसाइल ना करे। तो क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट मतलब यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब टोटल यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? जो भी आपकी जो भी आपकी ये कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट है, अब इस लेवल पे 4000 लेवल की बजटेड कॉस्ट कितनी है? 51,570। उसको आप खाली डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल। कितने यूनिट्स है इस लेवल के ऊपर? 4000 यूनिट्स है, तो कितना आंसर आ रहा है? 12.89। तो यहाँ पे 12.89 लिख लो, 12.89 इज द यूनिट कॉस्ट एट दिस लेवल। अब अगर मैं एडिशन, मेरा एक्सेल में काम कर रहा हूँ मैं, मेरा तो गलत हो ही नहीं सकता। अगर मैंने एडिशन भी कर लिया तो भी मेरा गलत हो नहीं सकता। देखो 12.89 ही आ रहा है, लेकिन जब आप काम करोगे
आपके नोटबुक में अगर आपने 2 डिजिट ही कंसीडर कर लिया, तो एंड में शायद आपका यूनिट कॉस्ट ना रिकंसाइल करे विद द टोटल कॉस्ट। तो बेटर क्या है, इसको कभी एडिशन करना ही नहीं, इस कॉलम का कभी भी एडिशन नहीं करना है यूनिट कॉस्ट का, टू कैलकुलेट द टोटल यूनिट कॉस्ट। तो क्या करेंगे, खाली जो बजटेड कॉस्ट है, अब देखो यहाँ पे बजटेड कॉस्ट कितनी है, 62,750 है, उसको डिवाइड करो आप, डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ यूनिट से। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे, 5,000 है, तो आपको टोटल यूनिट कॉस्ट मिलेगी। तो कितनी है यहाँ पे, 12.55। अब यहाँ पे भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बजटेड कॉस्ट कितनी है एट द लेवल ऑफ 6,000 यूनिट्स, दैट इज 73,930, उसको डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे से 6,000 यूनिट्स है, तो आंसर कितना है, 12.32। तो यहाँ पे मैं 12.32 लिख दूंगा। आपको पता चला, खाली एडिशन कौन से कॉलम का करना है, टोटल कॉस्ट का एडिशन करना है। इस कॉलम का एडिशन कभी भी मत करो, कभी भी मत करो, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है, अगर आपने 2 ही कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट कॉस्ट आएगी ना, शायद वो रिकंसाइल ना करे विद द टोटल कॉस्ट। तो बेटर क्या है, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो और वो उसी फिगर को यहाँ पे दिखा दो। दैट इज राइट, दैट इज द करेक्ट वे। नाउ दिस प्रॉब्लम इज ओवर। मैं आपको उसका व्यू दिखा देता हूँ। दिस इज द this is the flexible budget, showing separately the unit cost and total cost at a level of 4,000 units, at a level of 5,000 units, and at a level of 6,000 units. This problem is over. Thank you.